Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope your week would have been, going on a good note. We talked about research and different areas which we would like to touch, and how to extract information from the consumer so that we could see how the consumer perceives our brand and what makes him tick and why he would go and buy our brand. And we talked about a lot of things during our last session. Today we are going to talk about these comprehensive models of customer based brand equity. We would be talking about brand dynamics, equity engines, and Young and Rubicam's brand asset valuator. Young and Rubicam's is a ad agency which has now started giving out other marketing consultancies to its clients, and it is now one of the biggest ad agencies in the world. One of the, not the biggest. Okay, so they have given us a brand asset valuator. This is a comprehensive sort of program which evaluates your brand in different categories, and we will talk about that as well. Brand dynamics is like modeled adopts a hierarchical approach to determine the strength of relationship consumer has with the brand, and the 5 levels of model are presence, relevance, performance, advantage, and bonding. So these 5 level of models are, if you remember the CBBE model, where it was salience and imagery and judgment and feeling and resonance. So presence, relevance, performance, advantage, and bonding correspond to, that's in ascending order with the CBBE model. Equity engine, this model delineates 3 key dimensions of brand affinity: the emotional and intangible benefits of a brand as authority, identification, approval. Okay. The reputation of authority is the reputation of the brand, whether as long-standing leader or as a pioneer in innovation. Identification is the closeness customer feels for a brand and how well they feel the brand matches their personal need. And approval, the way a brand fits into the wider social metrics and the intangible status it holds for experts and friends. Before going further, I would stop here and I would go back to this slide of brand dynamics, where we are talking of these 5 levels of model of presence, relevance, performance, advantage, and bonding, and then back to this equity engine. Like if they have a certain dynamics, both of these models have a certain dynamics. If you to put it in a simpler way, आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ऐसे है कि आपकी जो बचपन से लेके बड़े होने तक जो डिफरेंट ब्रांड्स आपके पास आते हैं, जो आप इन कांटेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो उन ब्रांड्स का जो है आपके ऊपर क्या आप उनको किस तरीके से लेके चलते हैं. अगर आप देखें, आपकी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स होती हैं, फिर आपके जो है कैजुअल फ्रेंडशिप्स होती हैं, आपकी फ्लिंग्स होते हैं, सीक्रेट लव अफेयर्स होते हैं. ये सारे जो है ना, ये फेजेस आते हैं एक इंसान के ऊपर, और इसकी वजह से जो है यही जो है आपकी एसोसिएशन जो है ये ब्रांड्स के साथ भी होती है. ब्रांड्स आते हैं, चले जाते हैं, ठीक है ना. तो वो जो है, जैसे अगर आप चाइल्डहुड फ्रेंडशिप की बात करें, तो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप में जो है आई गेस जुबली चॉकलेट जो है इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है, ठीक है ना. चाइल्डहुड मेमोरी है,
एज यू ग्रो ओल्ड वो जो है एक मेमोरी रह जाती है एंड यू नो डू अवे विद इट। ऐसे ही है ना। फिर जो है अगर आप उसको जो है कैजुअल फ्रेंडशिप ले लें तो आई गेस आइडियल ब्रांड कुड बी यू नो मिल्क पैक भलाई। हर रोज तो नहीं ना आप इस्तेमाल करते, until unless you are into baking or something। अदरवाइज जो है वो मिल्क पैक भलाई जो है वो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपने पराठे के साथ खानी है या आपने टोस्ट पे लगा के खानी है, रस्क पे लगा के खाएंगे, बट यू डोंट डू दैट एवरी डे। ठीक है ना, बेकिंग करनी है, केक शेक बनाना है, तो उस वक्त आपको चाहिए। सो इट इज़ अ कैजुअल फ्रेंडशिप दैट यू हैव विद दैट ब्रांड। Am I right or wrong? You could, you know, come up with another brand maybe. ऐसे ही है ना। Then आपके जो है committed partnerships या committed friendships, for ladies it must be, you know, national मसाला जात। You're committed, आपका खाना जो है उन मसालों के बगैर नहीं पकता है। Because it is a brand, you are, you know it's trustworthy कि वो जो उसका मिर्चों का एक ख़ास टेस्ट होगा, नमक का एक ख़ास टेस्ट होगा, धनिया, अदरक पाउडर, पुदीना, whatever, मकसद लाइक हल्दी, ये सारी चीज़ें जो है यू गेट इट। तो वो जो नेशनल के मसाले के वो जो साफ़ सुथरे होंगे, यू नो हाइजीनिकली पैक्ड होंगे, वो सारी बातें जो हैं वो दे। तो कमिटेड पार्टनरशिप है आपकी वो। ठीक है ना। जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बडीज हैं, ठीक है ना, वो आपके स्नीकर्स हो सकते हैं, कुड बी नाइकी और एडिडास और रीबॉक, कुछ भी हो सकता है, लीवाइस की जीन्स हो सकती है, कि आप हर वक्त उन जो है ना शूज के अंदर या उस जीन्स के अंदर आप अपने आप को देखते हैं या आप नजर आते हैं। तो यू हैव अ बेस्ट फ्रेंडशिप, यू नो। It could be, you know, one of your t-shirts or a pair of, you know, earrings or जो आप जो है पहनते हैं, कंफर्टेबल होते हैं और आपको जो है ना you cannot do away with it, है ना। तो वो जो है वो बेस्ट फ्रेंडशिप जो है वो आपकी इन ब्रांड्स के साथ है। ये मैं आपको इसलिए इस वक्त ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना, जो हमने जो पिछली डिस्कशन की थी और जो अब हम आगे करने जा रहे हैं उसमें आपको समझ में आ जाए कि हम ये जो रिसर्च कर रहे हैं हम उसको किस तरीके से जो है ना इंटीग्रेट करते हैं इनटू डेटा। जब लोग जो हैं आपसे बात कर रहे होते हैं तो आप उसको किस तरीके से जो है उस डेटे को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू से कि जी ओके ठीक है जी ये बता दें, लेकिन वो जो है वो बता तो देगा आपको कंज्यूमर, लेकिन उसको आप समझेंगे कैसे भाई। फिर जो है कोर्टशिप होती है, ठीक है ना। तो कोर्टशिप जो है इज योर लाइक यू नो डिओड्रेंट्स, योर परफ्यूम्स। आपको जो है वो उस कोर्टशिप का जो टाइम होता है वो ब्रीफ होता है, कई दफ़ा लॉन्ग ज़रा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट देन अगेन वो आपको कुछ अरसे कोई एक परफ्यूम अच्छा लग रहा होगा, थोड़े अरसे बाद कुछ और परफ्यूम अच्छा लग रहा होगा, और वो जो है ना इस तरह से कुछ डिओड्रेंट्स जो है वो आपके चल रहे होंगे। एंड देन फ्लिंग है, कभी कभी जो है वो थोड़े अरसे के लिए किसी पे दिल आ जाता है, तो वो जो दिल है वो आपके जो फ्लिंग है कुड बी यू नो ट्रांसलेटेड इनटू जो ट्रायल साइज शैम्पूज होते हैं या क्रीम्स होती हैं। आपके अपना ब्रांड तो है ही जो आप यूज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जो है वो देते ना जो सैंपल के तौर पे आपको ये जो ट्रायल साइज शैम्पूज और क्रीम्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, तो वो जो है वो थोड़े दिनों के लिए आप वो उसको इस्तेमाल करते हैं। देन यू नो इफ यू लाइक इट यू माइट अडॉप्ट इट, अदरवाइज यू नो इट वाज जस्ट देयर फॉर अ लिटिल व्हाइल, खत्म हो गई कहानी, आपने वो उठा के फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, ठीक है जी। फिर जो है इंस्लेवमेंट में क्या है
क्योंकि वो इंस्लेवमेंट में आप जो है वो कैप्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है ना। आपका उस के बगैर जो है ना आपकी ज़िंदगी गुजारनी आपको जो है वो मुश्किल नज़र आती है। और जो है वो जब तक तो मोनोपोली थी तो इंस्लेवमेंट में सबसे अच्छी मिसाल जो थी वो हमारी क्या थी, PTCL एंड PIA, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी। हम PIA में ही ट्रेवल कर सकते थे वंस वी हैड टू बाय एयर, कहीं भी ट्रेवल करना होता था। और PTCL ही एक जो है ना आपका ऐसा वाहिद इदारा था जो आपको टेलीफोन प्रोवाइड करता था, तो उससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता था। बस इन कंपनीज़ को था और आपके पास कोई और वो नहीं था, आप उनके जो है ग़ुलाम थे। सिमिलरली अब जो है आजकल के केस में जो केबल टीवी है, ठीक है ना, आप उसके ग़ुलाम बने बैठे हैं। उसमें जो है अगर आप स्टार टीवी देख लें तो स्टार टीवी के जो है मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल वर इंस्लेव्ड टू स्टार टीवी। उन्होंने 5 साल आपको जो है फ्री में टीवी दिखाया, उसके बाद उसको वो जो है केबल में कन्वर्ट कर दिया और फिर देन यू हैड टू पे फॉर इट एंड यू वर सो एडिक्टेड to those dramas or soap operas that were being aired on Star TV that ultimately you had to buy that cable, you had to buy that box which would carry that card and you could watch those programs. So you were enslaved, ठीक है ना। And then you have a secret affair, मकसद आप लोगों को नहीं बताना चाहते कि भाई आपको कोई ब्रांड अच्छा लगता है, या जो ना आपको अभी भी अगर कोई जो है वो दे वो ब्रांड जो है वो कोई ऑफर करे तो यू वुड हैव इट, तो आप छुप छुप के जो है वो उसको खा रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी अलमारी में पेप्सी की बॉटल्स पड़ी होती हैं, दे आर दे हैव द सीक्रेट अफेयर ऑफ पेप्सी और कोक। अदर्स कुड बी वो जेट स्पोर्ट, वो जो ऑरेंज कलर की लॉली होती है, वो जो है बड़े भी हो जाते हैं, उसके बावजूद जो है अगर उनको वो मिल जाए तो दे वुड नेवर से नो, मतलब लाइक वो जो उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, जो एक खुशी उनके चेहरे पे नज़र आ रही होती है, वो हालांकि रेगुलर आइसक्रीम खा लेंगे, वो सबके साथ बैठ के खाएंगे, जेट स्पोर्ट वो सबके सामने बैठ के नहीं खा सकते। दे डोंट वांट टू टेल पीपल कि यार दे आर इन लव विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो जो उनकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सो अगर आपको इसी तरीके से यू कुड किनशिप की बात कर लें। किनशिप में जो है क्या है कि जो ब्रांड्स जो हैं वो आपको अपने विरासत में मिले होते हैं, जैसे डालडा हो गया, लक्स हो गया, मैकलीन्स या फॉरेन टूथपेस्ट हो गई, क्योंकि ये आपके बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल कर रहे थे तो आप भी वही ब्रांड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं till the time you find a good alternate. So you need to understand this कि जो है जो different human relationships है ना, ये brands भी उन different relationships को depict करते हैं। याद होगा आपको कि हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जॉन कैरी और जॉर्ज बुश को हमने वो मैच किया था कि व्हाट टाइप ऑफ अगर जो है ब्रांड्स डू दे डिपिक्ट, उनकी जो पर्सनालिटी है वो किन ब्रांड्स के साथ जो है वो मैच करती है, ठीक है ना। इसी तरह जो है ये आप अपने घर में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने ब्रांड्स देखे हैं, आप ब्रांड स्टडी कर रहे हैं, आप जो है वो जो ब्रांड्स हैं वो आप अपने जो है वालिद को अगर आप देख रहे हैं उन तो देखें कि कौन से ब्रांड्स हैं आपके वालिद पे फिट बैठते हैं, कौन से ब्रांड्स हैं आपकी वालदा पे फिट बैठते हैं, आपको जो है एहसास होगा। लेकिन देखें जैसे जो है ना हार्ड वर्किंग, लीडरशिप क्वालिटीज, एडवेंचरस, ये सारी चीजें आपको उन ब्रांड्स में नजर आ रही होती हैं, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन है
उस ब्रांड के बारे में वो कुछ इस तरीके से की जाती है, उसको डिपिक्ट इस तरह किया जाता है। आप अपने बारे में आप देखेंगे कि आप जो है कि कौन से ब्रांड्स आपके एटीट्यूड को फिट बैठते हैं। You might not be able to afford a few of them or all of them or whatever the case may be, but you always want to look different, ठीक है ना। So वो जो है वहाँ पे आप अपने आप में भी वो कर सकते हैं। अब एक ज़माना था कि जब जो है इंस्टेंट कॉफ़ी जो है वो इस तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं थी। कॉफ़ी जो है वो हमेशा जो कॉफ़ी बीन्स है हमेशा ग्राउंड की जाती थी, उनका जो है वो पाउडर बनाया जाता था, फिर उसके बाद उससे जो है वो कॉफ़ी ब्रू की जाती थी और फिर पी जाती थी। तो जो खातून जो है वो जो इमेज देखें, मैं अब आपको उस इमेज की बात बता रहा हूँ, तो वो जो खातून इंस्टेंट कॉफ़ी ख़रीदती थी ना, उसको जो है वो लोग समझते थे कि ये लेज़ी है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट था वो क्या था कि लेज़ी है, और दूसरा एस्पेक्ट ये था कि शी वुड नेवर बिकम अ गुड हाउस वाइफ, कि ये काम से जान छुड़ाती है, ये कभी जो है अच्छी खातून खाना नहीं बन सकती है। सी दिस इज व्हाट ब्रांड्स टेल people about how they would react or what their attitude is all about. You can tell a lot about the brands a person uses. So now I have given you a food for thought कि आप जो है इसको बैठ के सोचें और आपको जो है उससे अंदाज़ा होगा कि जो है लोग जो हैं उनके एटीट्यूड्स क्या हैं। जैसे जैसे वो ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं आपको उतना ही उनके बारे में पता चलने लग जाएगा। लेकिन अब अगर आप देखें, मतलब इन सारे ब्रांड्स को यूज़ करने में बुराई कोई नहीं है। अब जिस तरह वो आए थे कनौर के करी मिक्सेस आए थे, है ना। अब वो जो करी मिक्सेस आए उसमें क्या हुआ कि वो आपने दही में जो है उनको मिलाया और वो गोश्त या जो भी सब्जी वगैरह जो आपने बनानी थी उसको जो है हल्का सा वो फ्राई किया और उसके अंदर वो डाल दिया, वो मिक्स करके। यू डिड नॉट हैव टू डू मच, तो वो एक आपकी करी जो है वो तैयार हो जाती थी, एक सालन जो है वो जल्दी से तैयार हो जाता। अब बहुत सारे लोग जो है उन्होंने कहा कि यार ये क्या मजाक है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी हमारे माशरे में नहीं आई। लेकिन वो जो है हर एक के लिए नहीं था। It was basically for people who were single and living alone, or somebody where both husband and wife were working. अब जो है इतना टाइम नहीं रह जाता कि आप पूरे लवाजमात के साथ जो है वो खाना पकाएं। देखें बेसिक जो है प्रेमिस क्या था कि जी आपने अपनी भूख मिटानी है, आप रोज तो वो खाना नहीं खा सकते ना। अब जल्दी में अगर आपको कुछ पकाना है और आपके पास जो है क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि आप काम से वापस आए हैं एंड देन यू हैव सम वर्क व्हिच इज लाइंग एट होम, तो वो आपको कन्वीनियंस दे रहे थे। लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स इतनी ज़्यादा हुई, दूसरे और लोगों ने भी उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड देन दे स्टार्टेड थिंकिंग यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई आपको तो नहीं कहा गया ना। आप देखें कि वो तो ईज ऑफ यूज की बात हो रही थी, वो आपकी कन्वीनियंस की बात हो रही थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह कर लीजिए, आप वो ब्रांड इस्तेमाल कीजिए। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन जो मैसेज था वो इट वाज पुट अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीबडी, एंड देन द ब्रांड वाज लाइक डूम्ड। अब वो जो है यू कुड हार्डली सी दोज कनौर पैकेट्स इन द मार्केट। लोगों को वो आइडिया पसंद नहीं आया। हाँ अलबत्ता जो है वो चिकन क्यूब्स वाला जो है या वो जो है लोगों ने उसको पिक कर लिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। फिर जो है यंग एंड रूबिकम्स ब्रांड एसेट वैल्यूएटर, ये क्या कहता है कि जी देयर आर 5 की कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड हेल्थ इन BAV, द 5 पिलर्स, ठीक है जी। Each pillar is derived from various measures that relate to different aspects of consumers' brand perception and that together trace the progression of brand development. First one is differentiation, then it's energy, relevance, esteem and knowledge. ये 5 पिलर हैं जिसके ऊपर ये ब्रांड एसेट वैल्यूएटर बनता है।
ब्रांड एसेट वैल्यू जो है उसके अंदर जो ये आप जो देख रहे हैं मैप देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए कि ये जो रेड डॉट्स हैं ये डिपिक्ट कर रहे हैं जहां पे जो है उन्होंने कंज्यूमर्स को इनरोल किया हुआ है, इसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है। तो इन्होंने लोगों को इनरोल किया हुआ है जो तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर लोग हैं, या 2,40,000 जो फिगर है ये मैं आपको जो है 2005-2006 की फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब जो है ये 2.5 लाख से ऊपर कंज्यूमर्स हैं जो कि इनरोल हुए हैं और वो इसमें अपनी इनपुट देते रहते हैं, ठीक है जी। 181 कैटेगरीज है जिसके लिए ये इस्तेमाल होता है। 137 स्टडीज जो हैं वो हो चुकी हैं, 40 मुल्कों में ये शामिल है। 8 साल हो चुके हैं इसको करते हुए। तो अब जो है 8 साल, मकसद 2006 की बात हो रही थी, तो 6 और इसमें आप 6 और 2 8 ही और डाल दीजिए तो ये 16 साल हो चुके हैं। 56 डिफरेंट ब्रांड मेट्रिक्स एंड कॉमन मेथडोलॉजी, सब जगह जो है एक ही मेथडोलॉजी के थ्रू जो है वो आप इसको ले रहे हैं। सो अब जो है वो कहते हैं कि पहले वो बात करते हैं कि जी हाउ ब्रांड्स आर बिल्ट। तो ब्रांड्स आर बिल्ट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रेलेवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है कहता है फोर प्राइमरी एस्पेक्ट्स के अंदर कल्मिनेशन ऑफ ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स, एक्विजिशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस, ठीक है। ब्रांड की एफर्ट जो है, ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट क्या है? एक्विजिशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस। आपको सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो है कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या है विद दैट ब्रांड, गुड बैड, ठीक है ना। और जो है ईज ऑफ यूज, कुड बी एनीथिंग। सो लाइक जो है एक्सपीरियंस अच्छा भी है, बुरा भी है, आपको इस्तेमाल करने में आसानी होती है। मतलब देयर आर पीपल हु वुड जस्ट यूज दिस ब्रांड फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि उनको ईज ऑफ यूज है, अदरवाइज उनको वो शायद वो पसंद भी ना हो। अब कंज्यूमर रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रेपुटेशन, ये नॉलेज जो है वो कल्मिनेशन है, ठीक है। एस्टीम क्या है कि कंज्यूमर रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रेपुटेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ परसीव्ड कंज्यूमर प्रॉमिस। ये जो है ये नॉलेज की बात हो रही थी, वो यहाँ पे द कल्मिनेशन ऑफ ब्रांड बिल्डिंग एफर्ट्स, एक्विजिशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस। ये आपके पास ये नॉलेज है, ठीक है ना। ये जो नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये ब्रांड नॉलेज कस्टमर के पास कितनी है और आपके पास जो है उस ब्रांड नॉलेज का कितना पार्ट आपके पास है, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड के वेयर योर ब्रांड स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिशन इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। देन एस्टीम के कंज्यूमर रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रेपुटेशन, फुलफिलमेंट ऑफ परसीव्ड कंज्यूमर प्रॉमिस, के जो प्रॉमिस जो ब्रांड कर रहा था वो क्या है, कितना रिगार्ड करता है कंज्यूमर का, एंड कितना वो जो है प्रोमिसेस को फुलफिल करता है। अब रेलेवेंस इज रिलेट्स टू यूजेज, subsumes the 5 P's of marketing, relates to sale। अब अगर जो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पैकेजिंग जो है वो 5 P's पे ले गया उसको, वो जो है किस तरीके से यू रिलेट टू योर कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन ऑन बेसिस फॉर कंज्यूमर चॉइस, द एसेंस ऑफ ब्रांड एंड सोर्स ऑफ मार्जिन, कि हाउ योर कंज्यूमर डिफरेंशिएट्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन्स और इन द कैटेगरी, ठीक है। क्या वो जो है आपको सब्स्टिट्यूट समझता है किसी ब्रांड का, या आपके ब्रांड के लिए उसके दिमाग में कोई सब्स्टिट्यूट शामिल है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। वो जो है उसको जो है आपके पैकेजिंग के कलर्स पसंद है, या उसको जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि डिस्प्ले हुई हुई है उस पैकेट के ऊपर वो पसंद है, या वो जो डिज़ाइनर है जिसने बनाया है उसको वो पसंद है। वो किस तरह डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर आप देखें तो वो जो है केल्विन क्लाइन एंड टॉमी हिलफिगर, दे आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू कैप्चर द सेम टारगेट मार्केट। दोनों अमेरिकन ब्रांड्स हैं, दोनों जो हैं वो टारगेट करना शुरू करते हैं लोगों को, फ्रॉम टीन एज टू मिडिल एज पीपल, ठीक है ना। तो वो जो है वो
कोशिश उनकी यही होती है कि वो उनके ब्रांड को अडॉप्ट कर लें। तो लोग उसको आपस में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो है अगर आप मैगजीन्स उठा के देखें तो कैल्विन क्लाइन एड जो हैं आर अ लिटिल यू नो सटली प्रोवोकेटिव, ठीक है। उसमें जो है वो दे लीव अ लॉट टू योर इमेजिनेशन के क्या हो सकता है मकसद, ठीक है। द मॉडल माइट बी जस्ट सिटिंग इन अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है ना, और शी माइट बी जस्ट सिटिंग इन अ यू नो इन अ टी शर्ट और समथिंग, एंड देन दे हैव यू नो परफ्यूम्स जो कि आर नोन हेयर एज वेल। तो वो CK1 हो गया है, ऑब्सेशन हो गया है मकसद, वेल फिर टॉमी हिलफिगर डज हैव हिज ओन परफ्यूम्स एज वेल, यू नो जीन्स और टी शर्ट जो हैं टॉमी हिलफिगर की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे आके जो है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों का जो है ना बिहेवियर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जो हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि आपका जो है प्रोडक्ट है वो कहाँ जा सकती है, कितनी देर तक वो अपनी जो है प्रोडक्ट लाइफ टाइम जो है वो उसके एक प्लेटफॉर्म पे वो रहेगी। वुड इट बी यू नो स्टार्स और यू नो कैश काउज और डॉग्स और क्वेश्चन मार्क्स, वो जो है वो लोगों का रिएक्शन टुवर्ड्स योर ब्रांड वो डिटर्मिन करता है। अब जो है हेल्दी ब्रांड्स हैव ग्रेटर डिफरेंशिएशन देन रेलेवेंस, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन और रेलेवेंस को अगर आप मेजर करें तो डिफरेंशिएशन जो है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा है रादर देन वो रेलेवेंस पे ज़्यादा सेलिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सम एग्जांपल्स आर हार्ले डेविडसन, याहू, अमेरिका ऑनलाइन, विलियम्स, सोनोमा, आइकिया, ब्लूमबर्ग बिजनेस, ठीक है। ये जो है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड जो हैं ब्रांड्स हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट कर जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हार्ले डेविडसन जो है उसके अपने क्लब्स हैं, उसके अपना मैगजीन है, ठीक है ना। दे हैव अ कल्ट फॉलोइंग, जो हार्ले डेविडसन वाले हैं वो जो है दे आर कॉल्ड हॉग्स, ठीक है ना। और वो जो है हर साल जो है उसके ओनर्स वो एक ग्रुप के उसमें चलते हैं और हार्ले डेविडसन इसको जो है इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करती है और वो पूरे अमेरिका में फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट जो है वो ट्रेवल करते हैं। वहाँ पे उनका जगह ठहरने का भी रात का इंतज़ाम होता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता है, बाकी जो है एक्टिविटीज़ और होती हैं। तो वो सारे एक दूसरे के साथ जो है बिकॉज दे फील कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल हु ओन मोटरसाइकिल्स। तो हार्ले डेविडसन जो है वो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट नज़र आती है। अब जो है बहुत सारे लोगों ने हार्ले डेविडसन को कॉपी करने की भी कोशिश की है, ठीक है ना। इसी तरह के जो ब्रांड्स हैं आप यहाँ पे अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं आप उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि हमारे जो अपने जो लोकल ब्रांड्स हैं हम उनको इतनी प्रेस्टीज नहीं देते हैं, ठीक है। उनको हम इस काबिल नहीं समझते हैं कि वो compete कर रहे हैं उनसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ या ग्लोबल ब्रांड्स के साथ। तो वो ज़रा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर आप जो है इसको चाहें तो दिस यू कैन डू इट ऑन योर ओन एंड यू नो पुट इन लोकल ब्रांड्स ओवर हेयर। मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे ये ब्रांड्स वो रखे हैं कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं हु आर नोन अराउंड द वर्ल्ड, तो आप यू कैन नॉट यू नो मिस देम आउट। हार्ले डेविडसन की मैं बात कर रहा था। हार्ले डेविडसन ने क्या किया कि हार्ले डेविडसन ने उसको प्रोटेक्टेबिलिटी की बात मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेक्ट किस तरह किया अपने आप हमारे अपनी जो मोटरसाइकिल्स हैं फ्रॉम पीपल मेकिंग यू नो इमिटेशंस और यू नो कॉपीज ऑफ हार्ले डेविडसन। तो वो था कि उन्होंने उसकी जो आवाज़ थी ना उसको पेटेंट करवा दिया कि आवाज़ जो है वो डेसिबल्स में मेजर की जाती है और उसका जो है
एक ख़ास उसकी आवाज़ है, तो उन्होंने उसकी आवाज़ को जो है पेटेंट कर दिया कि वो जो है इतने डेसिबल्स होगी और इस तरह जो है ना उसमें इतना वो डिफरेंस है, वो मकसद उसकी डिटेल्स जो है वो सारी करके उन्होंने उसको वो कर दिया। अब क्या हुआ कि जो भी ब्रांड इसको कॉपी करता है उसकी जो आवाज़ है वो उस वेवलेंथ से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, सेम वेवलेंथ की नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि वो जो इंजन है एग्जैक्टली उसको कॉपी नहीं कर सकते। वो इंजन खोल के उन्होंने देख तो लिया कि ओके उसका जो पिस्टन साइज क्या है, ठीक है ना, उसकी जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितनी बड़ी है, बाकी जो चीज़ें हैं और वो उसमें वो सारी चीज़ें दे नो कि एग्जैक्टली कि वो व्हाट इज़ देयर, बट देन अगेन वो उसको एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं बना सकते, तो दे हैव टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ वो क्रैंक शाफ्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, और यहाँ वो जो पिस्टन साइज है वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, और उसकी जो प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है टोटल उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ताकि वो एग्जैक्टली वो साउंड ना आए। क्योंकि अगर वो आ गया तो जो है आपको हार्ले डेविडसन कोर्ट में ले जाएगा। आप हर चीज़ कॉपी कर सकते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं कॉपी कर सकते। जब आवाज़ नहीं कॉपी कर सकते तो इसका मतलब आप उस तरह का इंजन नहीं कॉपी कर सकते। यही चीज़ जो है वो पोर्शे ने जो है की है अपनी गाड़ियों के साथ। उनकी गाड़ी की जो आवाज़ है वो आपको उससे मिलती जुलती ज़रूर मिल जाएगी लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि उनका इंजन जो है उस तरीके से कॉपी नहीं हो सकता। ठीक, सो डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन रेलेवेंस। फिर ब्रांड्स विद ग्रेटर रेलेवेंस देन डिफरेंशिएशन आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग कमोडिटीज। जब रेलेवेंस ज्यादा हो जाती है ना तो फिर जो है वो क्या हो जाता है कि वो कमोडिटी में बन जाता है। मतलब लोग जो हैं उसको ऐसे ही उनको वो ब्रांड के तौर पे नहीं लेते, एक्सक्यूज मी। तो उसमें जो है एग्जांपल मैकडोनल्ड की है, मिनट मेड की है, फ्रूट ऑफ द लूम है, पीटर पैन पीनट बटर है, एक्सॉन है, ठीक है ना। तो यूनिकनेस जो है वो उनकी ब्रांड की वो फेड हो गई है, ठीक है ना। और जो सिर्फ क्योंकि वो जो है सस्ता मिल रहा है मार्केट में, इसलिए जो है लोग उसको खरीद रहे हैं, अदरवाइज दे वुड नॉट बाय इट। अगर आप उसको थोड़ा सा भी महंगा कर देंगे तो पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, दे वुड ऑलवेज लुक फॉर अ सब्स्टिट्यूट। उसमें जो है हमारे यहाँ क्रस्ट तो नहीं है, मिनट मेड अब मार्केट में अब हमारे यहाँ आया है। फ्रूट ऑफ द लूम जो अंडरगारमेंट्स हैं वो भी नहीं मिलते, लेकिन मैकडोनल्ड्स तो हमारे पास है ना, ठीक है ना। पीटर पैन पीनट बटर भी जो है बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाता है, बट देन अगेन जिफ मिलता है। अदरवाइज वो जो क्या होता है कि हमारे यहाँ मैकडोनल्ड्स तो खैर यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा प्राइस्ड ऑन अ हायर साइड, हालांकि है वही एक बंद कबाब, लेकिन हमने उसको इज्जत दे दी है और वो बर्गर बन गया, ठीक है ना। वो जो फ्राइज हैं अगर आप देखें तो वो हार्डली जो है 200 ग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। वो 200 ग्राम्स फ्रेंच फ्राइज जो है वो आप लेते हैं एंड यू आर पेइंग 100 रुपीज फॉर इट, वेयर एज इफ यू टेक दैट 100 रुपीज एंड गो टू अ शॉप यू कैन बाय 1 or 2 kg of potatoes, get them fried, and the whole family would eat those potatoes. वो जो फ्रेंच फ्राइज है वो सारा कुनबा बैठ के खा लेगा, लेकिन हमने जो है वो उसको एक आला मुकाम दे दिया इस ब्रांड को। रेलेवेंस हमारे पास जो है वो ज़्यादा हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है, हमने उसको रेलेवेंस पे नहीं हम उसे काउंट कर रहे। हमारे यहाँ जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा। फिर स्टीम मीन्स I'd like to get to know you better, ठीक है ना। तो स्टीम इज ग्रेटर देन नॉलेज। आपको पहन के अपना आप लोगों को हकीर समझने लग जाते हैं। आप उस ब्रांड को जब ओन करते हैं तो आप समझते हैं कि आप ऑटोमेटिकली जो है अपने ग्रुप में अलग हो गए। क्या करें भाई, आराम में हाथ लें, देखे ना, ह्यूगो बॉस, कैल्विन क्लाइन, टाग वार, ठीक है ना, मॉन्ट ब्लैंक,
गूची, ऐसे ही है ना। तो वो जो है ब्रांड जो है इज मोर लाइक्ड देन नोन। उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी लोगों को, लेकिन वो समहाउ और दी अदर वो ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये सारे जो हैं, जो मैंने आपके सामने ये जो लिखे हुए हैं, इसमें से आई गेस you would know very few brands. You would have to go on the web and check it out कि ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ये क्या बेचते हैं, ठीक है। सो वो जो है एक आपको सेल्फ एस्टीम दे रहे होते हैं, आपकी एगो को एक बूस्ट दे रहे होते हैं, जिसमें मैंने जो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई आपकी बुक में भी हैं, कोच लेदर, टाग हुआर, कैफलॉन, मोवाडो, ब्लॉक पंट, पेला विंडोज, पाम पायलट, टेक्निक्स। आपका एक स्टेचर जो है वो अगर इफ यू आर यूजिंग देम तो वो होता है, लेकिन वो सोसाइटी में ज़रा आप समझेंगे बेहतर समझा जाऊंगा अगर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी मिसाल इस तरह ही है कि कैमरी जो है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग कार, ठीक है। इट इज़ फाइटिंग इन द सेम कैटेगरी एज होंडा अकॉर्ड, लेकिन जो है वो होंडा अकॉर्ड इज लाइक बेटर। उसमें बैठने से आप यू फील यू नो एस्टीम्ड, whereas in Camry it's just another ordinary car for you. सेल्फ एस्टीम नहीं है। यही हमारे यहाँ जो है करोला की बात है, करोला इज ऑर्डिनरी मैन्स कार, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप वो सिविक की बात करें तो वो ऑर्डिनरी मैन नहीं रह जाते, somebody you know who is tech savvy, who is you know who wants to look different would sit in that car. अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाए, टू मच नॉलेज कैन बी डेंजरस। आई नो यू एंड यू आर नथिंग स्पेशल। अब यहाँ पे जो है जहाँ पे आपने नॉलेज ज़्यादा दे दी है अपने ब्रांड के बारे में, ठीक है ना, उनको उस ब्रांड को ज़्यादा टाइम हो गया मार्केट में, तो लोग जो है उसको बेहतर जानते हैं लेकिन उसको इतना अच्छा नहीं समझते हैं। इसकी मिसाल हलीब दूध है, ठीक है ना। हलीब दूध के बारे में अब लोग उसे जानते तो हैं लेकिन उसे अच्छा नहीं समझते, इसलिए उनकी जो मार्केट है, मार्केट शेयर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो प्लेमिथ, टीवी गाइड, स्पैम, वूलवर्थ्स, क्राइसलर, मैक्सवेल हाउस, नेशनल इंक्वायरर, सैनका। अगेन यू नीड टू गो टू द and you know take help of the web and see कि ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं। हमारे यहाँ जो है वो ब्रांडिंग इतनी वो नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ, मैं आपको जिस तरह मैंने आपको हलीब की एग्जांपल दी है, इसी तरह और भी ब्रांड्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हैव डाइड डाउन बिकॉज देयर वाज टू मच नॉलेज अवेलेबल एंड पीपल हैव यू नो नाउ लिटिल और नो इंटरेस्ट इन नोइंग देम। जो एस्टीम फैक्टर था उनका वो ख़त्म हो गया है। जब आपका कंज्यूमर जो है वो आपके सामने ये हो जाए ना कि वो कह दे कि जी अब इसमें क्या मतलब देयर इज नथिंग स्पेशल। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई एक्टर आपके सामने खड़ा हुआ हो और आप जो है उसको कहें कि फिर क्या है तो इंसान ही ना, तो एक्टर जो है वो ये चाहता, वो आपसे बात नहीं करना चाहता ये ना ये, लेकिन वो एक अटेंशन जरूर चाहता है। जब आप उसको कहते हैं इंसान ही ना, छोड़ दो यार क्या हुआ, खड़े रहने दो उसको वहां पे, एंड देयर आर पीपल हु वुड बी डाइंग टू गो एंड यू नो मीट दैट एक्टर, हाथ मिलाएंगे वो, तो वो जो है जब आपने उसको नथिंग स्पेशल कह दिया तो वो जो ऑटोमेटिकली जो है उसकी एस्टीम कम हो गई,
वो जो ही और शी वुड स्टार्ट फीलिंग लिटिल। आप लोगों को जब इग्नोर करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग लिटिल। जब पीपल आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, आपके दोस्त इग्नोर करने लग जाते हैं आपको, यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल। ब्रांड का भी यही हाल होता है। इसलिए वो जो है, आप उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने इस सिलसिले को अगर आपने समझना है, तो आप उसको जो है ना, ब्रांड को एक इंसान का शक्ल दे दें। और उसको जब आप इंसान की शक्ल दे देंगे, ह्यूमन बीइंग की शक्ल दे देंगे, तो फिर आप देखें कि उसके अंदर कौन कौन सी जो है ना क्वालिटीज हैं। जो क्वालिटीज आप उसको देंगे ना, उससे एसेस कर लेंगे आपके उसकी जो है, उसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा है, उसमें रेलेवेंस ज्यादा है, एस्टीम ज्यादा है, या नॉलेज ज्यादा है। अगर नहीं होगी, वो नॉलेज ज्यादा आ जाएगी, तो फिर जो है वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो उसकी सेल्फ एस्टीम है वो वहां पे कम हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि उसकी नॉलेज ज्यादा हो तो उसकी एस्टीम भी बढ़ जाए, आप उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देने लग जाए। इसीलिए जो है, जो जहाँ पे एस्टीम कम हो जाती है और नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे जो है फिर वो अपने आप को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने लग जाते हैं, जस्ट टू टेल पीपल कि वी केयर फॉर यू मोर, ताकि जो है लोगों में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी वो ज़्यादा होने लग जाए। ठीक है, अब जो है अगर आप देखें तो उसको हमने एक पावर ग्रिड में इस BAV मॉडल को ले लिया है। ब्रांड स्ट्रेंथ एंड ब्रांड स्टेचर, ये दो जो हैं ब्रांड एसेट वैल्यूएटर्स हैं, कि जो हैं वो दो आर्म्स हैं। अब जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंशिएशन एंड रेलेवेंस है, जो कि लीड करता है, और स्टीम और नॉलेज है जो लैग करता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड रेलेवेंस वुड ऑल्सो बी एवरी टाइम दे वुड बी लीडिंग, क्योंकि जब तक वो डिफरेंशिएशन रहेगी और रेलेवेंस रहेगी, एंड डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन रेलेवेंस, आप जो है यू विल बी enjoying life, the brand would be enjoying life. लेकिन जैसे ही वो डिफरेंशिएशन और रेलेवेंस से निकल के स्टीम और नॉलेज की तरफ आ जाएगा, तो आप समझ लें कि अब जो है ना काम खराब हो गया, आपकी जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो गई है. ठीक है, अब आप जो है इसको अगर आप एक्स और वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट कर लें, तो आप देखें कि जो ब्रांड स्ट्रेचर जो है वो स्टीम और नॉलेज इज ऑन दी एक्सिस एंड ब्रांड स्ट्रेंथ इज डिफरेंशिएशन एंड रेलेवेंस ऑन द वाई एक्सिस. अब जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें दो किस्म के ब्रांड्स हैं, नए एंड अनफोकस्ड. ठीक है, यहां पे आपकी जो डिफरेंशिएशन एंड रेलेवेंस है वो भी लो है, स्टीम एंड नॉलेज भी लो है. लेकिन जैसे ही आप इधर से निकलते हैं थोड़ा सा वो, अब आपने क्या किया कि एक नीश की तरफ चले गए जो कि स्पेशलाइज्ड किसी एक टारगेट मार्केट को कर रहे हैं, एंड देन देयर आर पीपल who do not realize their potential. The brand has not realized its full potential कि वो क्या कर सकता है. ठीक है, यहां पे जो है जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है लोगों का वो हाई हो जाता है, एंड दे टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. ठीक है ना, आप यहां पे जो है ग्रोथ की बात करने शुरू कर देते हैं. यहां पे जो आपकी जो रेलेवेंस है वो भी ठीक है, बट इट्स नॉट ऑन द हाई साइड, बट इट्स ग्रोइंग एज वेल. स्टीम इज एज गुड, क्योंकि जो है लोग जो डिफरेंशिएशन जब देखते हैं तो वो इज्जत की निगाह से भी देखने लग जाते हैं उस ब्रांड को. Whereas knowledge is less, लोगों को नहीं पता कि अभी जो है मजीद क्या है, क्योंकि अनरियलाइज्ड पोटेंशियल की बात हो रही है, एक खास सेगमेंट नीश की बात हो रही है. सो फ्रॉम देयर यू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट वेयर यू आर एट योर फुल पोटेंशियल एज अ ब्रांड एंड यू बिकम अ पावर लीडर. ठीक है, व्हेन यू बिकम पावर लीडर तो आपकी जो डिफरेंशिएशन है वो भी ज्यादा है, आपकी रेलेवेंस भी ज्यादा है, स्टीम भी ज्यादा है, एंड नॉलेज भी ज्यादा है.
and you are gaining the maximum or taking the maximum out of the market. ठीक है, उसके बाद इसी में ही you after some time, if you are not doing anything better, or you are not improving on your brand, the differentiation part would start declining, because there would be people who would be copying you, or as competition would be coming in with some sort of a differentiation and would act as a very strong substitute to your brand. So what happens is that consumers would start finding other brand more relevant to their lifestyle. They would wait for some time for the brand to do something different so that they could remain loyal to that brand. Otherwise, they would start shifting to your competition. Or maybe they have lost their customer lifetime value with that brand. वो जो हमने एसोसिएशन की बात की ना, उसमें फिर जो है वो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज वाली बात हो जाएगी. ठीक है ना, उसके अंदर जो है वो फ्रॉम किनशिप टू लिविंग अलोन हो जाएंगे, अपना टू अरेंज मैरिज हो जाएगी. क्योंकि एक वो किनशिप में वही ब्रांड्स जो चल रहे थे एंड वो पावर लीडर्स थे आपके लिए, आपके पास डिफरेंशिएशन थी, आपने क्योंकि वो बचपन में इस्तेमाल किए थे, आपके वालिदैन ने किए, आपके बहन भाइयों ने किए, चचा ताया दादा दादी, उनसे आपने वो सारी गुड चीजें जो हैं उसमें से पिक की हुई थी और आप वो इस्तेमाल कर रहे थे. एंड देन यू आर मैरिड टू समबडी एल्स, एंड वो जो ये द सेम थिंग वुड बी हैपनिंग टू योर पार्टनर देन. ठीक है ना, तो योर पार्टनर वुड कन्विंस यू कि यार तुम ये क्यों इस्तेमाल करते हो या करती हो, तुम ये क्यों नहीं करते या करती, दिस इज मच बेटर. एंड वो वहां पे उसने, क्योंकि वो आपको डिफरेंशिएट करके बताएगा या बताएगी, एंड यू वुड स्विच टू द अदर ब्रांड. सो लाइक यहाँ पे ही you have declining leaders. Your relevance is there, your esteem is there, that is brands, and knowledge is there, but differentiation is not there. Because somebody else thought about it and came up with a better product, and you have started losing your top position. यहाँ पे जो है आके वो गड़बड़ शुरू हो गई. ठीक है ना, तो in order to bring back that top slot, you need to come up with something drastically relevant to your consumer, so that he or she could keep that differentiation level at the peak and give you that top slot again. But it does not happen that way. So वहां से निकले and जो है ना erosion start हो गई, और फिर आप जो है वापस नीचे आ गए, और आपकी जो है अब यहाँ पे differentiation भी कम हो गई, relevance भी कम हो गई, esteem भी कम हो गई, knowledge भी कम हो गई. And then after some time you are unfocused, or you would go into brand extensions or line extensions. ठीक है ना, वो जब एक्सटेंशंस की बात आ रही है तो आप जो है आज क्रीम बना रहे थे, आपने जो है वो डिओड्रेंट भी बनाना शुरू कर दिया, आज आपने फेस वॉश भी बनाना शुरू कर दिया. तो ये एक्सटेंशंस हैं जो आ जाती हैं. और लाइन एक्सटेंशन में वही के मकसद आपके साथ जो है वो फॉर शाइनी हेयर, फॉर डेंड्रफ हेयर, फॉर कर्ली हेयर, फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, मकसद वही जो है आप उसमें, ताकि आप वो डिफरेंशिएशन, यू ट्राइंग टू रिमेन रेलिवेंट टू योर कस्टमर्स. ठीक है ना, अब जो है वो जिस तरह पहले हम सिर्फ दूध ही लेके आया करते थे, फिर देन देयर वुड बी फुल क्रीम मिल्क हो गया, देन देयर वाज अ लाइटर वर्जन, देन देयर वाज स्किम्ड मिल्क. ठीक है, देयर वाज अ पाउडर मिल्क. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आती हैं कि मकसद, इफ़ आई नीड टू कीप दिस पोजीशन, आई नीड टू कम अप विद ऑल दीज थिंग्स, ताकि जो है ये यहाँ से यहाँ को जाए.
जो ग्राफ है वो इस तरफ जा रहा हो, ग्राफ इधर नीचे की तरफ ना आ रहा हो, ठीक। सो USA 1999 पावर ग्रिड सैंपल, ये जो है आप इसको देखें, यहाँ पे जो है देख लीजिए डिफ्रेंसिएशन इंक्रीज हो रही है, रेलेवेंस स्टीम नॉलेज अभी कम है, ठीक है ना, एंड देन डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा है, और ये भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, दे आर ऑलमोस्ट हाफ एज मच। तो यहाँ पे ये देखिए 1999 की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत नए आ गए, एंड देन यू नो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ मोर स्टडीज दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। उसके बाद जाके आप ये नया जो है बना सकते हैं मैप जो है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे आपके ब्रांड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप ये देखें तो आइकिया जो है अभी पाकिस्तान में इट इज़ अवेलेबल, लेकिन ऑफिशियली दे आर नॉट हेयर, ठीक है ना। ड्रीम वर्क्स यू नो अबाउट इट बिकॉज यू माइट बी वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। तो ड्रीम वर्क्स जो है वो मूवीज़ बनाता है। ब्लूमबर्ग बिजनेस जो है वो एक टीवी चैनल है उनका, जो कि सारा वक्त आपको बिजनेस न्यूज़ दे रहा होता है, ठीक है ना। इसी तरह नाइकी आपने देख लिया, कोका कोला आपको पता है, ठीक है, M&M चॉकलेट्स आपको पता है, डिज्नी आपको पता है, हॉलमार्क के जो हैं वो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, दे आर अवेलेबल इन यू नो सिटीज़ लाइक कराची एंड लाहौर। बाकी जगह पे ज़रा थोड़ा सा इशू है। Sun Microsystems, you might know about them because they have you know some excellent products, ठीक है, very powerful systems which are used in oil and gas industry and you know movie making and other high tech, you know Nokia, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे you know PERT, ठीक है जी। I don't know if you know Rolex, Bazooka. Bazooka is a no, I'm not sure if this is what you know, ठीक है जी। So यहाँ पे Young and Rubicam Resonance Research क्या कहती है कि we take usage and from usage we measure loyalty, ठीक है, then loyalty, how much attachment do we have, community engagement and resonance, ठीक है ना। अब loyalty usage की जो 60% is goes to the loyalty, here attachment is 30%, community engagement is 15%, resonance is 10%। वो क्या कह रहा है कि जो स्टडी की गई है, जो पीछे हम ब्रांड एसेट वैल्यूएटर को हम देख रहे थे, उसमें जो है जो लोगों के साथ एक्सक्यूज मी, लोगों के साथ जब हमने बात की है तो हमें मालूम पड़ा कि जो ब्रांड्स जिनको हम बात करते हैं उसमें से जो लॉयल्टी है इज़ अराउंड लाइक 60%, उसमें जो अटैचमेंट है विद दैट ब्रांड इज़ 30%। तो लॉयल्टी इज़ देयर बट देन अगेन यू नो द अटैचमेंट इज़ नॉट देयर। तो जिस तरह वो हाउ मैनी बिलीव के यू नो दे शुड बी यू नो सर्विसिंग कम्युनिटी एंड you know how many think they are engaging with customers is like 15%, and there is only 10% of that all of what the 240,000 people that they were you know targeting, or they thought that you know it resonates with them, the brand resonates with them, which is a very low number. जो relationship है is very weak, though they have a loyal customer, लेकिन जो resonance level है is very low. तो brand को जो है has to concentrate on this कि engagement इतनी हो कि it should resonate with the consumer, वो relationship रहे,
नो मैटर व्हाट, क्योंकि लॉयल्टी ज़रूर है, लेकिन ये है कि आफ्टर सम टाइम यू नो यू गेट्स सिक एंड टायर्ड कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है कि मैं जो हूँ यार ये ब्रांड जो है इज़ नॉट अवेलेबल। और ज़्यादातर मसला जो है ये आम जो FMCG और ये इनके साथ तो थोड़ा होता ही है, लेकिन ये है कि दवाइयाँ जो हैं जब नहीं मिल रही होती हैं आपको, वहाँ पे आके ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप जो है जैसे दूध लेने गए हैं, आप यू यूज़ मिल्क पैक and you would go to one shop, other shop, another shop, maybe after 3 or 4 shops you need to buy milk। घर पे जो है दूध की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो अवेलेबल या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आप वो ले लेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव मच टाइम तो यू वुड इमीडिएटली मेक अ डिसीजन कि विच सब्स्टिट्यूट टू बाय। ऑलपर्स लेना है, हलीब लेना है, अनहार लेना है, प्रीमा लेना है, ऐसे ही होता है ना। तो कि जी वो नहीं मिला। सिमिलरली वो जो है जो बड़ी पैक है पेप्सी का, वो हर जगह नहीं अवेलेबल होता। उधर वो जो है मार्केट में लेके आते हैं, और देयर आर पीपल हु फॉलो दैट बड़ी पैक रिलीजियसली, वो फॉरन दे बाय इट आउट। आपको वो हाफ लीटर की बोतल मिल जाएगी, लीटर की बोतल मिल जाएगी, 1.5 लीटर मिल जाएगी, आपको पेप्सी का कैन मिल जाएगा, बट वो दैट बड़ी पैक इज मिसिंग। तो फिर आप क्या करते हैं? आप यहाँ तो वो कैन ले लेंगे या हाफ लीटर वाली बॉटल ले लेंगे, बट देन अगेन यू वुड नॉट बी हैप्पी विद इट। समहाउ द टेस्ट इज डिफरेंट व्हेन यू आर you have that buddy pack। तो आपको जो है वो देखना है। एंड देन उसकी कन्वीनियंस भी थी, उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि पीपल हु आर ऑन द मूव, तो वो जो बेल्ट कैरी करते हैं, जो ख़ास तौर पे जो एथलीट्स वगैरह हैं जो रनिंग वगैरह में का, वो जो है उस बड़ी पैक को उस बेल्ट में बना देते। तो वो ग्रूव जो बना हुआ है वो बेल्ट उसके इर्द गिर्द आ जाती है, तो इट डज नॉट ड्रॉप, तो आपको हाथ में उसे कैरी भी नहीं करना पड़ता। तो दैट बॉटल कैन बी रीयूज्ड अगेन एज वेल। तो उसके जो है वो, तो जब तक वो लेबल रहेगा या कुछ होगा, वो इट वुड कीप ऑन रिमाइंडिंग यू कि जी दैट ब्रांड कि जी आई एम हेयर टू, आई एम हेयर टू। ठीक है। अब जो है यहां पे देख लीजिए, ये जो एरो बनाया हुआ है, इट्स लाइक नॉन लॉयल्स विच इज रेड इन कलर, एंड देन लॉयल्स ओवर हेयर, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता चला गया। मीनिंग कि जो डिफ्रेंसिएशन है, जिस तरह वो बढ़ती चली गई है, जो आपकी लॉयल्टी है वो बढ़ती चली गई है, जो रेजोनेंस और एंगेजमेंट है या कम्युनिटी अटैचमेंट है, वो दे टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, ये देखिए, डिफ्रेंसिएशन और रेजोनेंस, रेलेवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज। नॉन लॉयल यूजर्स वो जो है रेलेवेंस, एस्टीम एंड नॉलेज की बेस पे जो है उस ब्रांड को खरीद रहे हैं, उनको डिफ्रेंसिएशन से कोई गर्ज नहीं है। लॉयल यूजर्स जो है, यहाँ पे जब वो 60% की बात आई, ये मकसद ये टोटल यूजर्स थे, ठीक है ना। ये पीछे ये वाला अगर आप देखें तो इसी को हमने उस दूसरे बार चार्ट में लेके चले गए। यहाँ पे फिर आपकी डिफ्रेंसिएशन जो है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है। आपकी जो रेलेवेंस थी वो भी इंक्रीज कर गई, स्टीम भी इंक्रीज कर गई, एंड नॉलेज भी इंक्रीज कर गई। अब जो लॉयल यूजर्स थे वो यहाँ पे आ गए। अब पीपल हु आर अटैच्ड विद योर अब आप ये देखें कि ये जो बार्स हैं, इनके कलर भी आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क होता जा रहा है, शेड्स डार्क होते जा रहे हैं। लाइक नाउ पीपल आर अटैच्ड टू योर ब्रांड। और आप ये देखिए कि ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्रेंसिएशन इज मेकिंग अ डिफरेंस एंड इट्स ग्रोइंग। जब आप कम्युनिटी उसमें आए सर्विस में, तो डिफ्रेंसिएशन और इंक्रीज कर गई है, ठीक है। देन यू हैव engaged,
and then you have started resonate, और जो है डिफ्रेंसिएशन वो आहिस्ता आहिस्ता देखें वो बढ़ती जा रही है. गो के जो है फ्रॉम हेयर टू हेयर देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन डिफ्रेंसिएशन, बट देन इट इज वेरी ग्रेजुअल, स्लो. बाकी रेलेवेंस, esteem and knowledge are at the peak. डिफ्रेंसिएशन जो है वो नहीं है. It is the differentiation which is making a difference. ये देखिए, ये like this is like 60% probably, and over here is like around what, 80%, and here it's like 100%. तो वो जो है loyalty is around 80%, और जो है 100 between this is like only 20%, जिसके लिए जो है वो community attached and resonance engaged जो है is working to make that brand. ठीक. अब एवरेज यूएस पैकेज्ड गुड्स ब्रांड जो है वो क्या कहता है कि प्रेजेंस 76% है, 43% रेलेवेंस है, 35% परफॉर्मेंस को दिए हैं, 32% एडवांटेज है, एंड 7% बॉन्डेड है. ठीक है. तो प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स के साथ जो है इसको इन्होंने वो किया. अब कंज्यूमर लॉयल्टी जो है, जो बॉन्डेड है वो लॉयल्टी इज लाइक 30%, फॉर एडवांटेज इज 20%, फॉर परफॉर्मेंस इज 19%, फॉर रेलेवेंस इज 17%, एंड फॉर प्रेजेंस इज 13%. तो जो लॉयल्टी का जो ग्राफ है इज अपसाइड डाउन. जो प्रोपोर्शन टू कंज्यूमर्स है वो डाउन साइड अप है. ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है. अब कॉमनैलिटी क्या है बिटवीन बेसिक ब्रांड सेट वैल्यूएटर मॉडल एंड CBBE फ्रेमवर्क. तो कहता है कि BAV's knowledge relates to CBBE's brand awareness and familiarity. The esteem relates to CBBE's favorability of the brand association. जो esteem है वो आपकी favorability के साथ मैच करता है. ठीक है. Relevance जो है वो strength of brand association, perhaps favorability को वो भी relate करता है. ठीक है. Energy relates to एसोसिएशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. डिफ्रेंसिएशन इज यूनिकनेस ऑफ ब्रांड एसोसिएशन की बात कर रहे हैं. सो लाइक ये जो है CBBE मॉडल को शायद देखते हुए ही ये ब्रांड एसेट वैल्यूएटर को फॉर्मुलेट किया गया था. तो जो फीलिंग एंड जजमेंट एंड इमेजरी वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा जो है वो इट इज रेलिवेंट टू द पीपल. ठीक है. सो यहां पे जो है हम बात खत्म करते हैं. मकसद लाइक दिस इज ऑन द कंज्यूमर साइड दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हाउ टू इंटरप्रेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हाउ पीपल परसीव द ब्रांड एंड हाउ दे रिएक्ट टू इट एंड हाउ यू फॉर्म एसोसिएशंस. द कंज्यूमर फॉर्म्स एसोसिएशन विद द ब्रांड. सो in order to make the brand more relevant, you need to understand how this brand is being used by the consumer, in what different circumstances it was used, what the 5 P's of marketing, the marketing mix would has an effect on the consumer side. So the knowledge and esteem and relevance for the BAV, they really play a very important role in making that brand. But however, differentiation is the key to making your brand as an asset to consumer. If that differentiation is not there, your brand would not be taken in a very positive manner, and it would not be able to
extract that profit from your consumer. So you need to, while differentiating your product, you also need to, make it more relevant to the consumer. अगर आप वो देखें, आजकल एक जो है मार्केट में एक नया सोप आया है जो कि जुबैदा आपा ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके टैग लाइन है कि गोरा होगा पाकिस्तान। ठीक है ना। अब गोरा होगा पाकिस्तान जो है वो शी इज डिफरेंशिएटिंग, मतलब वो जो पहला जो फैक्टर जो डिफरेंशिएट करता है वो तो यही है कि जी जुबैदा आपा ने जो है ना वो उनका जो कोई टोटका है जिसकी वजह से जो है ये बन रहा है। बट उन्होंने जो है वो उसको पोजीशनिंग कुछ इस तरह कर रहे हैं कि लाइक एज इफ सारे काले जो हैं वो पाकिस्तान में बसते हैं। बट दे आर मेकिंग इट रेलिवेंट, क्योंकि जो है पीपल आर डार्क स्किन्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड and you cannot help it. But if you look at the sales figures, you will be surprised. एक स्टडी कंडक्ट की गई थी कुछ अर्सा पहले, आई गेस 3 or 4 years बैक, तो उसमें ये पता चला कि जो फेयर एंड लवली है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मर्द हजरात खरीदते हैं। इट वॉज अ क्रीम दैट वॉज मेड फॉर वेमेन। बट देन अगेन, क्योंकि हम तो हमेशा वो गोरे रंग के पीछे ही भागते हैं ना, तो वो लेकिन ये है कि वो मर्द हजरात जो हैं वो खरीद रहे थे। तो देन दे रियलाइज कि वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ क्रीम फॉर मेन एज वेल। तो फेयर एंड लवली केम अप विद अ प्रोडक्ट फॉर मेन बिकॉज दे नो कि दैट द स्किन इज डिफरेंट, मेन स्किन इज डिफरेंट देन फ्रॉम वेमेन स्किन। तो उन्होंने उस फॉर्मुलेशन थोड़ी सी चेंज करके फॉर मेन उन्होंने वो स्किन लिए, और फिर वो अब मेंस फेस वॉश भी आ गया। सो वो जो है वो डिफरेंशिएशन जब आ गई तो नाउ दे हैव अ न्यू कैटेगरी एंड नाउ इट इज मोर रेलिवेंट। सो द esteem and knowledge level is also high. Now people believe in that product, they have more trust in that product. ठीक है। सो वो जो ये जो सारी चीज है, इट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।